اسکرین نظر آ رہی ہے سب کو؟ جی تجوید کے قواعد یاد ہیں؟ جی ٹھیک ہے، یہ تو ہے، اب دیکھتے ہیں سے- کیا ہوتا ہے بالکل انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ارم سورۃ جی رحمان آیت نمبر 1 تجوید کے قواعد بتائیں۔ جی باجی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ کے اوپر زبر ہے، اور حمزہ کے جی اوپر جی زبر بالکل ہے، اور آگے لام خالی ہے، اور را کے اوپر شد ہے، تو ہم حمزہ اور را کو ملا کر پڑھیں گے، یعنی ادغام کریں بالکل گے، اور سختی کے ساتھ بھی ادا کریں گے، اور آگے ہا جو ہے یہ ساکن ہے، تو ہم را اور ہا کو بھی ملا کر پڑھیں گے۔ میم کے اوپر بالکل کھڑی زبر ہے، ہمیں اس کو، یہ ایک الف کے قائم مقام ہے، تو ہم اس کو 1 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے، اور نون کے اوپر پیش ہے، کیونکہ یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے، تو ہم نون کو جو ہے ساکن کر دیں گے۔ بالکل۔ اچھا ارم، یہ جو ہم نون کو ساکن کر رہے ہیں تو یہاں کون سا قاعدہ استعمال ہو رہا یہاں کون سا قاعدہ؟ ہے؟ جی جی وقف کر رہے ہیں نا؟ بالکل ماشاءاللہ، جی وقف کر رہے ہیں تو وقف وصل کی کرنے میں حالت میں ہم ملا نے کے پڑھیں گے، اور وقف کی حالت میں وقف کر دیں گے۔ بالکل ہم نے کیا قاعدہ پڑھا تھا کہ اگر آیت ختم ہو رہی ہو اور اس سے پہلے آخری حرف پہ پیش ہو تو وہاں کیا قاعدہ استعمال ہوگا؟ وہاں ساکن ہو جائے گا نا، وقف کی حالت میں وہ ہو جائے گا بالکل جی، اور بالکل اگر وصل کی حالت میں ہو تو پھر ملا کے پڑھا جائے گا۔ بالکل ماشاءاللہ۔ اچھا ارم، مجھے یہ بتائیں کہ یہاں جو الرحمن، یہاں جی حمزہ کے بعد یہ جو لام آ رہا ہے اس کو ہم کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کیونکہ یہ لام تعریف ہے، اور کیونکہ الرحمن حروف را جو ہے حروف شمسی میں سے، کیونکہ اس کے اوپر شد ہے، تو ہم الف لام کو جو ہے نہیں پڑھیں گے یہاں پہ، کیونکہ یہ حروف بالکل شمسی میں سے ہے۔ ماشاءاللہ، جی بالکل ماشاءاللہ۔ اب یہاں الف لام جو ہے جی رحمان کے اوپر الف لام داخل ہو رہا ہے، اس کو لام تعریف کہتے ہیں، اور جب یہ لام الف لام جو ہے حروف کس شمسی پہ پہ داخل داخل ہو ہو؟ تو پھر نہیں پڑھا جاتا۔ بالکل، حروف شمسی میں سے کسی حرف پہ داخل ہو جائے تو پھر یہ لام نہیں پڑھا جاتا، جیسے یہاں الرحمن پڑھا جا رہا ہے نہ کہ الرحمن۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اس کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ الرحمن۔ بالکل ماشاءاللہ، صرف اس میں جو ہے میم کے اوپر کھڑی زبر ہے اس کو ہم نے کیا کیا؟ ٹچ کیا، کھینچا اس کو۔ بالکل کھینچ کے پڑھا۔ دوبارہ سے پڑھیں، کیسے ادائیگی ہوگی؟ الرحمن۔ بالکل، صرف کتنا کھینچیں گی؟ ایک الف کے قائم مقام۔ ایک الف کے قائم مقام۔ تو ایک الف کے قائم مقام کھینچنا مطلب کہ اگر آپ اپنی ایک انگلی کھول لیں اور اس کو بند جی کریں تو وہ ایک الف کے قائم مقام ہوگا۔ جی دوبارہ سے ادائیگی کریں۔ الرحمن۔ بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی صبا، آپ آیت نمبر 2 جو ہے تجوید کے قواعد بتائیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئین کے اوپر زبر ہے، سنگل حرکات ہے، اس کو کھینچ کے ادا نہیں کریں گے، آگے لام مشدد ہے، اس کے اوپر زبر ہے، ہم لام کو پچھلے آئین کے ساتھ ملا کے تھوڑا سختی سے ادا کریں گے، اور بالکل ماشاءاللہ۔ اور اچھا میم۔ صبا، آپ نے بولا کہ جو لام ہے وہ مشدد ہے اور اس کو ہم سختی سے پڑھیں گے، جی ٹھیک ہے، اس کا کیا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا؟ یہ صرف لام کے اوپر شاد ہو تو سختی سے پڑھتے ہیں، یا اس کا قاعدہ سارے حروف پہ جو ہے استعمال ہوتا ہے؟ صرف لام کے اوپر جب شاد ہو تو کسی بھی حرف پہ شاد آ جائے تو پھر ہم تشدید کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ جی بالکل سختی سے ٹھیک پڑھیں۔ ہے، جی جی بالکل آگے بتائیں۔ اور میم کے اوپر زبر ہے، سنگل حرکات ہے، آگے لام ساکن ہے، ہم لام کو پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، آگے قاف کے اوپر پیش ہے، سنگل حرکات ہے، اس کو بھی ہم کھینچ کے ادا نہیں کریں گے، را ساکن ہے، پھر ہم را کو قاف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، اور آگے
आगे हम अलिफ के ऊपर हमजा के ऊपर खड़ा ज़बर है। बिल्कुल। अच्छा सबा, आपने पहले बोला अलिफ के ऊपर, फिर आपने बोला हमजा के ऊपर। अलिफ और हमजा में क्या फर्क है? और अलिफ के ऊपर कुछ हरकत ना हो तो फिर, हमजा के ऊपर हरकत ना हो बिल्कुल ना तो फिर वो अलिफ कहते हैं, ऐसे। ठीक है। बिल्कुल। जब खाली हो तो उसे हमेशा अलिफ पढ़ेंगे, लेकिन अगर उस पे कोई हरकत दाखिल हो जाती है, जबर जेर पेश या खड़ी जबर खड़ा जेर उल्टा पेश, कोई भी हरकत आ जाती है तो वो हमजा कहलाएगा, अलिफ नहीं रहेगा। जी। बिल्कुल, आगे बताएं। आगे नून के ऊपर ज़बर है और आयत भी खत्म हो रही है, तो फिर हम उसको नून को फिर साकिन कर देंगे ज़बर को। बिल्कुल। अच्छा सबा, अब यहाँ कौन सा कायदा बता रही हैं कि नून के ऊपर जबर है, नून को साकिन किस सूरत में किया जाता है? जब आयत खत्म हो रही हो तो उससे पहले कोई उससे पहले कोई जी मतलब जेर ज़बर पेश हो तो फिर हम उसको साकिन कर देंगे। बिल्कुल माशाल्लाह। जब आयत खत्म हो रही हो और उससे पहले आखिरी हर्फ पर जबर जेर या पेश हो तो हम वक्फ की सूरत में, ठहरने की सूरत में उस हर्फ को क्या कर देते हैं? वक्फ कर वक्फ कर देंगे, वक्फ साकिन। साकिन साकिन कर कर देते हैं, देंगे। जैसा कि यहाँ हमने कौन से हर्फ को साकिन किया? अगर हम नून वक्फ करते हैं, ठहरते हैं तो नून को साकिन किया। नून को। बिल्कुल माशाल्लाह। जी सबा, इसकी तिलावत कैसे करेंगे? जी। अल्लमल कुरआन। बिल्कुल माशाल्लाह। जी इरम, आप बताएं आयत नंबर 3 तजवीद के कवायद। जी बाजी। खा के ऊपर ज़बर है, सिंगल हरकत में से हम इसको जल्दी अदा करेंगे। लाम के ऊपर सिंगल हरकत है, ज़बर है, हम इसको भी जल्दी अदा करेंगे। और काफ के ऊपर ज़बर है और आगे चूंकि लाम साकिन है तो हम काफ और लाम को मिलाकर पढ़ेंगे। और हमजा के नीचे जेर है और आगे नून साकिन है तो हम हमजा और नून को मिलाकर पढ़ेंगे। और सीन के ऊपर ज़बर है और आगे चूंकि हमजा खाली, अलिफ खाली है तो हम ये अलिफ मद्दा हुआ और हम इसको 2 सेकंड्स के लिए खींच के पढ़ेंगे। और नून के ऊपर आके ज़बर है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे साकिन करेंगे यानी वक़्फ़ की हालत में, तो ये नून जो है ये साकिन हो जाएगा, इसकी हरकत जज़म में बदल जाएगी। बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा इरम, यहाँ आपने बताया यहाँ सिंगल हरकत हैं, खा के ऊपर जबर है, लाम के ऊपर जबर है, काफ के ऊपर जबर है, सिंगल हरकत से क्या मुराद है? सिंगल हरकत से मुराद यानी हम इसको खींच कर नहीं पढ़ेंगे, जल्दी अदा करेंगे। जी जी, सिंगल हरकत कितनी है? यानी ज़बर ज़ेर पेश ये सिंगल हरकत है। बिल्कुल माशाल्लाह। कुल जो सिंगल हरकत हैं वो कितनी हैं? वो नो सिंगल हरकत सिर्फ जो वो है 3 है। बिल्कुल, कौन कौन सी? ज़बर ज़ेर पेश। बिल्कुल माशाल्लाह। और सिंगल हरकत का कायदा क्या है कि जब भी सिंगल हरकत आए तो हम उनकी अदायगी कैसे करेंगे? जल्दी पढ़ेंगे, उसको खींच कर नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल माशाल्लाह। जी अदायगी करें इस आयत की। जी। खलक़ल इंसान। बिल्कुल। अच्छा इरम, अब यहाँ एक कायदा आप भूल गई हैं, थोड़ी सी तवज्जो करें। अम, कोई कायदा ऐसा है जो आपने स्किप किया? कोई कायदा नून का मेरे ख्याल से मैंने स्किप किया है। बिल्कुल बिल्कुल, हम्म, क्योंकि नून साकिन है। जब भी नून साकिन आएगा तो यहाँ हम किस बात का ख्याल करेंगे? नून मतलब उसके बाद साकिन पे। कुछ कायदा ही होगा, जैसे यहाँ पे हरूफ इख्फा का कायदा आ रहा है। बिल्कुल माशाल्लाह, जी। हरूफ इख्फा, ये कायदा आपने स्किप किया, इसके जी बारे में बिल्कुल। वजाहत करें। जी हरूफ इख्फा जो है ये 15 हैं, जैसे ता सा जीम दाल जा जा सीन शीन सो दो तो ज़ा फा काफ काफ। और बिल्कुल यानी ये जहाँ पे भी आएंगे तो हम नून पे इख्फा करेंगे, यानी आवाज को थोड़ी देर के लिए खींचेंगे। इरम, जहाँ पे भी आएंगे या नफ्स बकायदा इसका कोई कायदा है? and अगर नून यानी हम सिर्फ साकिन इख्फा हो। करेंगे वहां पे, सॉरी। जी जी, मुकम्मल कायदा बताएं। अगर नून साकिन हो और जी। उसके बाद जी अगर नून साकिन हो और उसके बाद हरूफ इख्फा में से कोई हरफ आए तो हम नून पे इख्फा करेंगे।
यानी बिल्कुल आवाज को माशाल्लाह, थोड़ी ठीक देर है। के लिए नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। बिल्कुल, ये इख्फा है कि जब जी भी नून साकिन हो और उसके बाद हरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां हम इख्फा करेंगे, यानी नून की आवाज को नाक में छुपा कर अदायगी की जाएगी। यहाँ नून साकिन है और इसके बाद हरूफ इख्फा में से कौन सा हर्फ आ रहा है? तीन। सीन आ रहा है, बिल्कुल। अब इसकी दोबारा से अदायगी करें इख्फा करते हुए। जी। खलकल इंसान। बिल्कुल माशाल्लाह, ठीक है। सबा, इसके बाद आप आयत नंबर 4 इसके तजवीद के कवायद बताएं, फिर इसकी तिलावत करें। जी। आइन के ऊपर ज़बर है, सिंगल हरकत है, इसको खींच के अदा नहीं करेंगे। आगे लाम मुशद्दद है, उसके ऊपर ज़बर है, और लाम को आइन के साथ मिला के थोड़ा सख्ती से अदा करेंगे। और आगे मीम के ऊपर ज़बर है, सिंगल हरकत है, और इसको भी हम सिंगल हरकत को खींच के अदा नहीं करते। आगे पेश है, और ये पेश के बाद आगे लाम साकिन है, तो हम हा के ऊपर पेश है, तो हा को लाम के साथ मिला के अदा करेंगे। और बा के ऊपर ज़बर है, ये भी सिंगल हरकत है। और आगे या के ऊपर ज़बर है, आगे अलिफ खाली है। अलिफ खाली हो उससे पहले ज़बर हो तो ये अलिफ मद्दा का कायदा कहलाएगा। तो हम इसको दो सेकंड के लिए बिल्कुल खींच के अदा करेंगे। बिल्कुल और माशाल्लाह। नून के ऊपर ज़बर है, सिंगल हरकत है। तो और आगे आयत ख़त्म हो रही है, तो हम अम, नून को साकिन कर देंगे, इनके इसको जज़म में बदल देंगे। बिल्कुल माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा सबा, अब मुझे यहाँ बताएं कि अलिफ लाम दाखिल हो रहा है। अलिफ लाम, जी अलिफ लाम किधर? अल जी जी, आप देखें ना, हुल, ये लाम जी है ना, इस पे जज्म है। जी जी। अब यहाँ कोई कायदा ऐसा है जिसके बारे में हमने पढ़ा है और वो यहाँ आ रहा है जो आपने नहीं बताया? ये हरूफ शमसे, हरूफे, शमसे, नो नो। दोबारा तवज्जो करें, लाम पढ़ा जा रहा है, नहीं। अलिफ लाम मुकम्मल नहीं पढ़ा जा रहा ना? जी जी जी। तो ये हरूफ कमरी में आए। बिल्कुल माशाल्लाह, हरूफे कमरी। अब ये जैसा कि अर रहमान अलिफ लाम है, यहाँ अलिफ लाम जो है वो अल, जी जी अल है, और जी यहाँ, जी ठीक है, जी मतलब जी अर शद के साथ पढ़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ जो है हुल बयान, जैसे कि हमने पढ़ा था कि अलिफ लाम जब किसी हर्फ पे दाखिल होता है, अगर वहां लाम जो है वो उसका इदगाम होता है तो वो हर्फ क्या होगा जिस पे वो दाखिल हुआ है? जी। अगर लाम हो तो वो कमरी में से होगा, हरूफ अगर कमरी में। लाम नहीं पढ़ा जाता तो वो मतलब वहां इदगाम, बिल्कुल शमसी है। और जी, जिन पर लाम पढ़ा जाता है, वो हरूफ कमरे में से होंगे। बिल्कुल। अब यहाँ देखें, लाम पढ़ा जा रहा है या नहीं? अम, पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, तो फिर ये क्या कायदा होगा? हरूफ कमरी में बिल्कुल आए बिल्कुल, थे। हरूफे कमरी, क्योंकि यहाँ पढ़ा जा रहा है, हुल, लाम के ऊपर जज्म है ना, जी जी ठीक है, पढ़ा जा रहा है लाम। अब जी। रहमान जो है इसमें लाम नहीं पढ़ा जा रहा है, इसमें सीधा सीधा हम हमजा से रा पे आ गए, जी, ये लाम नहीं शब्द पढ़ा से गया ना। अगर लाम पढ़ा जाता तो फिर ये अर रहमान की बजाय क्या पढ़ा जाता? अल। अल हम्म, रहमान, ठीक है। जी, लेकिन यहाँ अर रहमान पढ़ा गया है, लाम जो है वो नहीं पढ़ा गया, तो इससे हमें पता चलता है कि रा जो है वो हरूफे शमसी में से है। और जब भी हरूफे शमसी में से कोई हर्फ आ जाए और उस पे अलिफ लाम दाखिल होगा तो लाम नहीं पढ़ा जाएगा। नहीं पढ़ा जा। जी लेकिन अगर हरूफे कमरी में से किसी पे अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो वहां लाम पढ़ा जाएगा, जी ठीक है। अब मुझे जी। बताएं कि अल्लामाहुल बयान जो है इसमें बा जो है ये कौन से हरूफ में से है? कौन से मैंने याद नहीं जी किए सही तरह।
कमरी और जी जी, शम्स। अलिफ लाम से तो आपको पता चल गया ना, जब लाम पढ़ा जा रहा है तो मतलब कि वो हरूफे कमरी में से है, अगर जी लाम नहीं पढ़ा जा रहा तो वो हरूफे शमसी में से है। जी ठीक है, जी। दोबारा से मुझे बताएं, अगर लाम पढ़ा जा रहा है तो वो कौन से हरूफ में से होंगे? अगर लाम पढ़ा जाए तो वो हरूफ कमरी में से होंगे, और बिल्कुल, अगर मतलब जिसके आगे मतलब अलिफ के बाद शद हो तो फिर वो, अलिफ लाम के बाद। अलिफ लाम के बाद शद हो तो फिर वो हरूफ शमसी होंगे, यानी कि लाम नहीं पढ़ा जा रहा होता तो ठीक है, ठीक है, अब इसकी तिलावत करें। इसलिए अल्लामहुल बयान। ठीक है, माशाल्लाह। इरम, आप आयत नंबर 5 इसके तजवीद के कायद बताएं। जी बाजी। हमजा के ऊपर ज़बर है और आगे क्योंकि शीन के ऊपर शद है, यानी शीन हर्फ मुशद्दद में से है, तो हम हमजा और शीन को यानी आपस में मिलाएंगे, इदगाम करेंगे। और यहाँ पर क्योंकि अलिफ लाम जो है नहीं पढ़ा जा रहा, तो ये हरूफ शमसी में से हुआ, और बिल्कुल, शीन जो है हरूफ शमसी में से है क्योंकि यहाँ पे शीन के ऊपर शद है। ठीक है, और शीन को हम मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे क्योंकि मीम साकिन है, और आगे सीन के ऊपर पेश है, ये सिंगल हरकत में से हम इसको जल्दी अदा करेंगे। वाव के ऊपर ज़बर है ये, और आगे लाम जो है ये साकिन है, तो हम वाव और लाम को मिलाकर पढ़ेंगे। और यहाँ पे क्योंकि हम डायरेक्टली वाव और लाम को मिलाकर पढ़ रहे हैं, तो ये हरूफ कमरी में से हुआ, हम इसको मतलब अच्छा इरम, यहाँ पे अलिफ और लाम पढ़ा जा रहा वाव है। बिल्कुल, जी वाव को हम लाम के साथ मिला रहे हैं, मतलब यहाँ लाम पढ़ा जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ जी। हरूफ कमरी में से कौन सा हर्फ है? काफ। काफ, बिल्कुल जी माशाल्लाह। काफ। जब और भी काफ हरूफ कमरी में से कोई हर्फ हो और उस पे अलिफ लाम दाखिल हो तो लाम क्या होता है? लाम लाम जो है पढ़ा फिर जाता है। पढ़ा जाता है। जी बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल जैसे यहाँ पे ये माशाल्लाह, आगे पढ़ा बताएं। जा रहा है, तो ये हरूफ कमरे में से हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे काफ के ऊपर हम तफखीम भी करेंगे क्योंकि ये हम इसको मोटा पढ़ेंगे, और इसके बिल्कुल ऊपर पूर्ण ज़बर है तो हम पढ़ेंगे। इसको जल्दी अदा करेंगे। मीम के ऊपर भी ज़बर है, ये भी सिंगल हरकत में से, हम इसको भी जल्दी अदा करेंगे। रा के ऊपर पेश है और हम इसके ऊपर भी तफखीम करेंगे क्योंकि ये इसको भी पुर पढ़ा जाएगा। और बा के नीचे बिल्कुल शेर है, और हा के ऊपर पेश है, और सीन साकिन है, तो हम हा और सीन को मिलाकर पढ़ेंगे। बा के ऊपर बिल्कुल ज़बर है। माशाल्लाह। अच्छा इरम, आप ये बता रही हैं कि हा के ऊपर पेश है और सीन के ऊपर जज्म है, मिला के हाँ पढ़ेंगे, क्या जी, कायदा यहाँ इस्तेमाल हो रहा है? के ऊपर जिस्म है। जी जी, तो क्या कायदा क्या है? बिल्कुल जिस्म का कायदा है जी, जहाँ पे भी क्योंकि सीन की अपनी हरकत नहीं है, तो हम इसको पिछले वाले हरकत के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। बिल्कुल जी माशाल्लाह, यहाँ जो है यहाँ सुकून का कायदा आ रहा है, सुकून जज्म का का कायदा कायदा आ रहा है जी। है। बिल्कुल, कि जब भी सीन हर्फ पे सीन जो है जज्म ये हो वो हमेशा अपने जी माकबल की हरकत से मिला के पढ़ा मिला जाता के पढ़ा जाता है जी। है। बिल्कुल सॉरी, मैं ठीक। सोच रही थी मैंने हरकत जो है गलत पढ़ दी, मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रही थी। नहीं नहीं, बिल्कुल ये यहाँ जज्म का कायदा जी इस्तेमाल जी हो रहा है। जी आगे बिल्कुल। बताएं। बेहुस्बान, बाद जो है ये भी सिंगल हरकत में से, और चूंकि आगे अलिफ खाली है और ये अलिफ मद्दा हुआ, तो हम इसको 2 सेकंड्स के लिए खींच के पढ़ेंगे। और अच्छा, नून के अलिफ नीचे मद्दा हुआ इरम, अलिफ मद्दा जी, हुआ, अलिफ मद्दा का क्या कायदा है? जब भी जब भी अलिफ खाली हो और उससे पहले ज़बर आ जाए, तो ये जो है अलिफ मद्दा हुआ, यानी हम इसको 2 सेकंड्स के लिए खींच के पढ़ेंगे। बिल्कुल, आगे बताएं। जी। और नून के नीचे 2 ज़ेर हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे आयत को ख़त्म कर रहे हैं, तो हम इसको साकिन कर देंगे। बिल्कुल, अब यहाँ क्या कायदा इस्तेमाल हो रहा है इरम? नून के जी नीचे तनवीन है और इसका जी क्या कायदा यहाँ इस्तेमाल होगा? वक़्फ़ की अगर हम जी इसको हम साकिन करेंगे। ये जी नून नून के नीचे 2 ज़बर है, यानी तनवीन है, तो क्योंकि हम यहाँ पे वक़्फ़ कर रहे हैं, तो वक़्फ़ की हालत में हम नून इरम, के ऊपर जज़म आ जबर है, जाएगा, यानी हम इसको साकिन कर देंगे। नून के नीचे दो जबर हैं। ज़ेर सॉरी। बिल्कुल, जी जी, दो जेर नून, हों तो फिर क्या कायदा होता है? तो हम इसको साकिन वक़्फ़ की हालत में जो है साकिन कर देंगे, यानी नून के ऊपर जज़म आ जाएगा। बिल्कुल माशाल्लाह।
یعنی اگر آیت ختم ہو رہی ہو اور اس سے پہلے آخری حرف پر 2 زیر تنوین ہو تو پھر ہم رکنے کی صورت میں اس کو کیا کریں گے؟ وقف کر دیں گے. ساکن کر دیں گے. جی ساکن کر دیں گے. جی بالکل، تلاوت کریں. الشمس والقمر بحسبان. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. میرے خیال سے 5 آیات کافی ہیں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آیات چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن آپ لوگوں نے تجوید کے قواعد جو ہیں وہ ذہن میں رکھنے ہیں. جی ٹھیک ٹھیک ہے، ہے. اور اب کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے، ابھی دیکھیں تھوڑی تھوڑی آیات ہیں، کوشش کریں ابھی سے نمبرنگ جو ہے وہ ذہن میں رکھ لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تاکہ بعد میں ہمیں نمبرنگ کے لیے علیحدہ سے پریکٹس نہ کرنی پڑے، ساتھ ساتھ ہی آپ کو یاد ہو کہ یہ آیت نمبر 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے. ٹھیک ہے، اور کل میں ایسے ہی آپ لوگوں سے سنوں گی، میں یہ نہیں شروع سے آخر تک سنوں گی، میں آیات کی نمبرنگ کے ساتھ سنوں گی. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے تجوید کا خیال رکھتے ہوئے، رموز اوقاف کا خیال رکھتے ہوئے، نمبرنگ کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس کو حفظ کرنا ہے. جی ٹھیک ہے، جی انشاءاللہ. انشاء ابھی کے لیے مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.